Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, बेटा. संदीप बेटा म्यूट कर लीजिए, आपकी तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. कैसे हैं आप लोग? अच्छे Good मैम. morning, ma'am. Fine, ma'am. Okay. I'm fine, ma'am. So I'm going to start the class. Is the slide is visible to all of you? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So this is again Dr. Ishita Yadav from Institute of Agriculture Sciences. So from today onwards, we are going to start our second unit, which contains enzyme along with the general properties, classification, mechanism of action, Maclaurin and Minton equation along with Lineweaver equation and plots, introduction to allosteric enzymes, another topic that is nucleic acids, which contains importance and classification, structure of nucleotides A, B and Z DNA, RNA types, secondary and tertiary structures. The third another topic of this unit is, anybody wants to say something? कोई कुछ बोल रहा है? Third topic of the unit is metabolism of carbohydrate, which contains glycolysis, TCA cycle or Krebs cycle, glycoxylate cycle, electron transport chain, ETC, metabolism of lipid, beta oxidation and biosynthesis of fatty acids. Okay? So this is the syllabus of the second unit. स्लाइड दिख रही है बेटा सबको प्रॉपर्ली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Today we are going to have a look on the enzymes and their general properties and classification. Okay. So before starting a new topic, let's have a quick revision of the last class or the recapitulation summary of the last class. Last class में हमने पढ़ा था ज़ोट्राइन. ज़ोट्राइन कोई बताएगा क्या होता है बेटा? What is ज़ोट्राइन? Any one of you? Ma'am, it is a bipolar ion. Bipolar ion. और कोई? Non-deuterions is a molecules that has both positive and negative regions of charge. Okay, good. बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज आप लोग. पढ़ने में मजा तभी आता है जब क्लास बहुत इंटरैक्टिव होती है, इंटरैक्टिव इन अ पॉजिटिव सेंस. ठीक है, जब तक आप चीजों को सीरियसली नहीं लेंगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, है ना? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्लास. यू हैव टू पुट ऑन योर वीडियोज. ठीक है, माइक इज एंड अनदर इशू. जब भी आपको कुछ पूछना है, you all are able to put on your mic and ask your question and ask reply. ठीक. ज़ोट्राइन क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स अगर बात करूं, मॉलिक्यूल और आयन विच कंटेन्स अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव इलेक्ट्रिकल चार्जेस. ठीक है, ये क्या हो गया? जो दोनों तरीके से बिहेव करे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी. ठीक है, so this is a ज़ोट्राइन and ज़ोट्राइन also contains another property that is isoelectric point. Isoelectric point क्या होता है कि जहां पे जो नेट चार्ज है मॉलिक्यूल का वो कैसा हो जाए? न्यूट्रल हो जाए. क्लियर? So now what is enzyme? एंजाइम क्या होता है? इससे पहले मैम, एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है. गुड, वेरी गुड.
That act as a catalyst in living organisms. Very good, Shreya. Well done. So, enzyme is one of the unique characteristic of a living. ठीक है, लिविंग जो सेल है उसको एक बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड किया गया है बाय द नेचर. ठीक है, क्यों मैंने ये चीज बोली? बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू परमिट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन टू प्रोसीड रैपिडली when they will come under the contact of temperature of the surrounding environment. ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं लिविंग सेल्स की, ठीक है, वो बहुत ही रैपिडली प्रोसीड होने लगती हैं. कब? जब भी जो इन्वायरमेंट, सराउंडिंग इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है उसके अंदर. ठीक है, हरिओम बेटा म्यूट कर लो. हरिओम. तो ये जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग सेल में, तो वो एग्जैक्टली परफॉर्म कौन कर रहा है? एंजाइम. ठीक है, जब बोलते हैं ना एंजाइम कैटालिसिस हो रही है या एंजाइमेटिक रिएक्शन चल रही है ना. सो इन सिंपल टर्म्स, इफ यू टॉक अबाउट द एंजाइम, or if somebody says then to you that explain what is enzyme, simply say enzyme are biological catalysts that proceed up rate of the biological reactions. ठीक है, enzymes क्या है? biological catalysts हैं जो कि क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं, बढ़ाते हैं किसको? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, किसकी बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हो रही है बॉडी के अंदर जो परफॉर्म हो रहा है, या किसी भी प्लांट सेल में जो परफॉर्म हो रहे हैं उन. ठीक है, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन. ठीक है, ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? 3D, दे कैरी 3D ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर. ठीक, some special RNA species also act as an enzyme. प्रोटीन तो करते ही हैं एंजाइम की तरह एक्ट, but some species of RNA also act as an enzyme and are called ribozymes. ठीक है, जब मैं आपको RNA पढ़ाऊंगी तो राइबोजाइम्स का रोल क्या होता है इसको मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी. ठीक है, Now come to the structure of the enzyme. ठीक, exactly structure कैसा होता है एंजाइम का? एंजाइम carry a one active site. ठीक है, the active site of an enzyme is the region that bind substrate. मतलब active site एक ऐसा रीजन हो गया जो क्या करता है? सबस्ट्रेट को बाइंड करता है. ठीक है, cofactor and prosthetic groups contains residue that help to hold the substrate. cofactor और जो prosthetic group है, ठीक है, और कुछ जो रेसिड्यूज हैं वो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं उस सबस्ट्रेट को जुड़े रहने के लिए. ठीक है, जो एक्टिव साइट है एंजाइम की, जनरली वो ऑक्युपाई करती है लेस देन 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एंजाइम. ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम भी मैंने एक बनाया वो आपको मैं शो करूंगी. एक्टिव साइट हैज अ स्पेसिफिक शेप ड्यू टू टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला था कि सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन की तरह एक्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी वही बात आ गई. एक्टिव साइट हैज अ स्पेसिफिक शेप ड्यू टू द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. क्लियर? अ चेंज इन द शेप ऑफ द एंजाइम अफेक्ट्स द शेप ऑफ द एक्टिव साइट. ठीक है, जब भी कोई भी चेंज, चाहे वो एंजाइम का हो या प्रोटीन का हो, अगर अफेक्ट हो रहा है तो इट obviously affect the shape of the active site and the function of that particular enzyme. ठीक है, अगर प्रोटीन का शेप जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है तो वो एक्टिव साइट की शेप को भी डिस्टर्ब करेगा और उस एंजाइम के फंक्शन को भी डिस्टर्ब करेगा. ठीक, अब जो एक्टिव साइट है, जैसे मैंने बताया कि एक्टिव साइट क्या है? एक ऐसा एरिया जो सबस्ट्रेट को बाइंड करता हो, किससे? एंजाइम से, जिसको अगेन 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फर्स्ट वन इज बाइंडिंग साइट, अनदर वन इज कैटालिटिक साइट. ठीक है, बाइंडिंग साइट क्या होती है? इट चूजेस द सबस्ट्रेट एंड बाइंड इट टू एक्टिव साइट. बाइंडिंग साइट वो हो गई जो सबस्ट्रेट को चूज करती है और एक्टिव साइट से बाइंड करती है. वेयरएज द कैटालिटिक साइट क्या करता है? परफॉर्म्स द कैटालिटिक एक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम. उस एक स्पेसिफिक एंजाइम की कैटालिटिक एक्शन को परफॉर्म करता है. ठीक है, कोफैक्टर्स क्या होते हैं? कोफैक्टर क्या है? एक नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो कि कैरी करता है जो भी आउट केमिकल रिएक्शंस हैं उनको, दैट कैन नॉट बी परफॉर्म बाय स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड्स. ये चीज जो है वो जो हमारे 20 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं उनके थ्रू परफॉर्म
नहीं होती, ठीक। अगेन कोफैक्टर इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड in two parts, or we can say cofactor are having two types. First one is organic cofactor, second one is inorganic cofactor, ठीक है। सबस्ट्रेट की अगर मैं बात करूं, मैं 3-4 बार मैंने बोल दिया सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, सबस्ट्रेट से बाइंड करता है, ठीक। ऑल ऑफ यू आर क्लियर अबाउट द एक्टिव साइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। वंशिका मंडलोई, बेटा दिस इज नॉट द टाइम ऑफ योर क्लास। सबस्ट्रेट की अगर हम बात करें तो जो भी रिएक्टेंट है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो टर्म्ड कर रहा है एज अ सबस्ट्रेट, ठीक है, जो भी रिएक्टेंट जो बायोकेमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहा है एज अ सबस्ट्रेट, जब भी कोई सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड होता है किसी भी एंजाइम से, तो वो क्या करता है, एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करता है, ठीक है। आदित्य, you are also late in the class. So here you can see this is the active site, okay, and ये पर्पल कलर का है, this is the enzyme where this substrate is going to bind, ठीक है। ये जो स्पेस है, ये जो स्पेस है इसको मैंने क्या बोल दिया, एक्टिव साइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का जो पीस है जिसको मैंने सबस्ट्रेट बोला है, ये आकर के यहाँ पे बाइंड करेगा, तो फिर ये स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा हमारा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। क्लियर? नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम, ठीक है। एंजाइम्स आर प्रोटीन स्पेसिफाइड टू कैटलिस्ट बायोलॉजिकल रिएक्शन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स दैट हैव अ स्पेसिफिक कैटलाइज्ड बायोलॉजिकल रिएक्शंस को वो कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स मैंने यहाँ डिस्प्ले किए हैं, आप यू कैन हैव अ लुक। एंजाइम्स बिलोंग प्रोटीन एग्जिबिट ऑल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। They have their specific isoelectric point at which they are least soluble, जहाँ पे वो सबसे कम घुलते हैं, जहाँ पे वो least soluble होते हैं, at their they are having their specific isoelectric point. Clear? Like protein, they can be denatured by change in pH and temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्रोटीन का क्या होने लगता है, डीफोल्डिंग होने लगती है, मतलब कि डीनेचरेशन होने लगता है। प्रोटीन जिस अगर उसका कॉइलिंग जो शेप है वो कॉइल्स खुलने लगते हैं या बॉन्ड्स खुलने लगते हैं, या जो भी उसका शेप है वो शेप जो है वो डीनेचर्ड होने लगता है। सेम एंजाइम्स के साथ भी होता है कि जब भी उनके हम पीएच या टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो डीनेचरेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब जो एंजाइम कैटलिस्ट जो रिएक्शन हो रही है 100 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी एस्मोटिक प्रेशर में, ठीक है, और न्यूट्रल पीएच के साथ में, ठीक। अब जो एंजाइमेटिक रिएक्शन जो कैटलाइज्ड हुई, ठीक है, उसका एक डेफिनेट टेम्परेचर है, वो क्या है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर बाय द न्यूट्रल पीएच। एंजाइम्स अंडरगो फिजिकल चेंजेस, कुछ फिजिकल चेंजेस भी होते हैं एंजाइम्स में। कब होंगे, जब भी कोई भी रिएक्शन जो है वो रिवर्ट होती है अपने ओरिजिनल फॉर्म में एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के अंत में अगर कोई रिएक्शन अपने ओरिजिनल फॉर्म में रिवर्ट हो रही है तो कुछ फिजिकल चेंजेस भी ऑब्जर्व किए जाते हैं किसमें, एंजाइम में। एंजाइम्स एग्जिबिट enormous catalytic power, they also contains enormous catalytic power. विशाल गोयल, बेटा कितना टाइम हो गया, क्लास का टाइम है 9:50 एंड इट्स 10:06। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है किसी भी एंजाइम की, द रेट ऑफ एंजाइमेटिकली कैटलिस्ट रिएक्शन, क्या कह रहे हो बेटा, हेलो, कोई कुछ कह रहा है बेटा, वॉइस आ रही है क्लियरली?
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The rate of enzymatically catalyzed reaction are 10 to the power 6 to 10 to the power 12 times greater than those of the corresponding uncatalyzed reaction. कहने का मतलब ये हो गया कि जो corresponding uncatalyzed जो reactions हैं, है ना, उनसे 10 to the power 6 to 12 टाइम्स ग्रेटर होती है क्या, जो हमारी रेट ऑफ एंजाइमेटिक कैटलाइज्ड जो रिएक्शंस हैं। ठीक, अब कुछ टाइम क्या होता है कि एट द सेवरल टाइम्स ग्रेटर देन दोज ऑफ करेस्पॉन्डिंग केमिकली कैटलाइज्ड रिएक्शन। अनकैटलाइज्ड रिएक्शन से भी ग्रेटर होती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो करेस्पॉन्डिंग केमिकली कैटलाइज्ड रिएक्शन है उससे भी बढ़ती होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की बात करें, ठीक है, तो क्या होता है, कैटलाइज करता है वो क्या, कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोनिक एसिड। क्लियर? In this reaction, each enzyme molecule can hydrate 10 to the power 5 molecule of the carbon dioxide per second. समझ गए ना? 10 to the power 5 molecules of carbon dioxide per second. So you can imagine the rate of reaction. ठीक? Enzyme activity is regulated in variety of ways. बहुत सारे various way में हम enzyme activity को regulate कर सकते हैं, ranging from control over the amount of enzyme protein system of any modulation of actively through reversible interaction with metabolic inhibitors and activators or through enzymes। ठीक है, जो भी प्रोटीन हमारी सिंथेसाइज हो रही है सेल के थ्रू, या जो मॉड्यूलेशन ऑफ एक्टिविटी जो हो रहा है रिवर्सिबल इंट्रैक्शन, जितने भी हमारे मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स हैं या एक्टिवेटर्स हैं उनके साथ में, तो इस चीज के थ्रू हम उस प्रोटीन मतलब कि उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी अमाउंट है हमारे एंजाइम का। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। ठीक है मैम, उसका फर्स्ट वाला पॉइंट फिर से रिवाइज करवा दीजिए। क्या कह रहे हो बेटा? मैम, फर्स्ट वाला पॉइंट फिर से रिवाइज करवा दीजिए एक बार। फर्स्ट वाला समझ में नहीं कौन सा? ये वाला? नो मैम, अभी पढ़ा रहे थे वो। मैम, रेट ऑफ रिएक्शन वाला। रिएक्शन वाला मैम। दिस वन? यस मैम। कहने का मतलब ये है, द रेट ऑफ एंजाइमेटिकली कैटलाइज्ड जो रिएक्शंस होती हैं, दे आर 10 to the power 6 to 10 to the power 12, मतलब कि इतने टाइम्स ग्रेटर, मतलब कि ज्यादा होती हैं देन दोज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग अनकैटलाइज्ड जो रिएक्शंस होती है उनसे। बट एट अ सेवरल टाइम कभी कभी क्या होता है कि ये ज्यादातर जो टाइम होता है वो क्या होता है कि ग्रेटर होती है ये देन दोज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग केमिकली जो कैटलाइज रिएक्शंस हैं उनसे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे किसी एग्जाम्पल को अगर पुट करते हैं तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो कैटलाइज करता है द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोनिक एसिड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक कार्बोनिक एसिड को फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है जनरली इस रिएक्शन में, जितने भी एंजाइम हैं, एंजाइम मॉलिक्यूल्स जो है वो हाइड्रेट हो जाते हैं 10 to the power 5 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर सेकेंड। ठीक है, 10 to the power 5 मॉलिक्यूल पर सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड के जा रहे हैं, है ना। अब जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो रेगुलेट होती है वो हम वैरायटी ऑफ वे में कर सकते हैं। ठीक है, जो कि रेंज करती है फ्रॉम कंट्रोल्स ओवर द अमाउंट ऑफ एंजाइम प्रोटीन सिस्टम, एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस जो सेल है या जो भी हमारा मॉड्यूलेशन है एक्टिविटी जो कर रहा है, जो रिवर्सिबल इंट्रैक्शन चल रहा है किसी भी मेटाबॉलिक इनहिबिटर या एक्टिवेटर के साथ में या किसी भी आइसो एंजाइम से। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो पहले ऐसा हुआ कि कुछ एंजाइम्स जो थे उनको कुछ नाम असाइन किए गए, कुछ नाम दिए गए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिस्कवरी। ठीक है, जिसने भी उनको डिस्कवर किया गया उनके नाम के बेसिस पे उन एंजाइम्स को नेम किया गया। ठीक है, जैसे जैसे रिसर्चर्स आते गए वैसे वैसे कुछ मॉडिफिकेशंस भी होते गए। ठीक है,
फिर क्या हुआ, क्लासिफिकेशन जो हुआ वो मोर कॉम्प्रिहेंसिव हो गया, ठीक। फिर एक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट या बायोकेमिस्ट्री आए, उन्होंने क्या किया, एंजाइम्स को फिर से ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू किया, ठीक है। तो एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 फंक्शनल क्लासेस, ठीक, and are classified on the type of reaction in which they are used to catalyze, ठीक है। 6 फंक्शनल ग्रुप में या 6 फंक्शनल क्लासेस में डिवाइड किया गया या डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उनके रिएक्शन के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे, जो रिएक्शन कैटलाइज्ड हो रही है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो जो जनरली 6 तरीके के जो एंजाइम्स हैं वो क्या क्या है हमारे, हाइड्रोलिसिस, oxidorreductases, lyases, transferases, ligases and isomerases, ठीक है। अब जो सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन है ना, वो किसने डेवलप किया, दैट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय द इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन, IEC के थ्रू ये एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है और नेमिंग ऑफ द एंजाइम हैज बीन डिसाइडेड बाय दैट कमीशन, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा, सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन है एंजाइम का दैट हैज बीन डेवलप्ड बाय इंटरनेशनल एंजाइम कमीशन ने एक सिस्टमैटिक एंजाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन था वो डेवलप किया, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है किस पे बेस्ड है, रिएक्शन कैटलाइज जो हो रही है एंजाइम्स के थ्रू उन पे, टाइप ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम, ठीक है। सो फिर से बता रही हूँ आपको, देयर आर 6 मेजर क्लासेस ऑफ द एंजाइम, ठीक। अब इन क्लासेस को कैसे, मतलब कि अगर किसी एंजाइम को डिवाइड किया गया तो कुछ तो मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 क्लासेस में ही छोड़ दिया गया होगा, मेजर क्लासेस के बाद सब क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया एंड देन सब क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्शन कैटलाइज्ड होती हैं एट अ डिफरेंट एंजाइम, ठीक है। तो इनको कैसे किया गया, क्लास, सब क्लास, सब क्लासेस, ठीक है, ऐसे इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो अगर हम क्लास के बेसिस पे जो 6 हमारे मेजर एंजाइम्स में उनको देखें तो सबसे पहला हमारा क्या है, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है। ऑक्सीडोरिडक्टेज क्या होता है कि ये क्या करते हैं, दीज कैटलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडोरिडक्टेज की अगर बात चले तो हमेशा 2 चीजें दिमाग में लेके आना, पहला ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। सो दीज एंजाइम कैटलाइज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज है, वो क्या करेगा, कैटलाइजिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट टू एसिटाइल कोएंजाइम A। जब हम क्रेब्स साइकिल पढ़ेंगे तब इस पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम जो है वो कैसे कैटलाइज होकर के आया, वहां पे आपको इसका रोल देखने को मिलेगा। सेकेंड जो है वो क्या है, ट्रांसफेरेजेस, ठीक है। ट्रांसफेरेजेस आर दीज transferases are the type of enzyme that they catalyze transferring of the chemical group, ठीक है। क्या करते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसफेरेजेस, ये ट्रांसफर करते हैं केमिकल ग्रुप को एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के पास में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ट्रांसअमाइनेज की बात करें तो वो क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है एक अमाइन ग्रुप को, ठीक है, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है ना। जो इनके नेम जो रखे गए हैं ना, वो उनकी एक्टिविटी, मैंने बोला ना रिएक्शन कैटालिसिस के बेसिस पे रखे गए हैं, क्या एक्टिविटी किस तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। थर्ड वन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस ऐसे मतलब कि एंजाइम्स हैं जो कि कैटालाइज करते हैं। आवाज आ रही है बेटा, हेलो, यस मैम, ओके, ओके। दे कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ अ बॉन्ड, ठीक है, किसी भी बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस को कैटालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल जो एंजाइम पैप्सिन है हमारे पास, वो क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा पेप्टाइड बॉन्ड की, किसमें, प्रोटीन्स में, ठीक है। हाइड्रोलिसिस किसकी हो रही है, बॉन्ड्स की। फोर्थ वन इज लाइसेस, ठीक है।
ये क्या करते हैं, ये कैटेलाइज करते हैं ब्रेकेज जो होता है बॉन्ड का विदाउट कैटेलिसिस, बिना कैटेलिसिस के ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड होता है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आइडोलेज जो है एंजाइम, जो कि एक ग्लाइकोलिसिस है, ठीक है, वो कैटेलिसिस करता है क्या, स्प्लिटिंग ऑफ, मतलब कि अलग करना किसका, फ्रक्टोज 1,6 बाइसल्फेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एंड डाइहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, ये इसको तोड़ देता है या ब्रेक कर देता है। अब जैसे आइसोमेरेसिस है, आइसोमेरेसिस क्या करता है, ये कैटेलाइज करता है फॉर्मेशन ऑफ एन आइसोमर ऑफ अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉस्फोग्लूकोमेटेज जो कैटेलाइज कर रहा है वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है या कन्वर्जन करता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये मैंने आपको जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था उस टाइम पे ये रिएक्शंस मैंने आपको बताई थी, ठीक है। लास्ट वन जो है वो क्या है, लाइगेजेस है। लाइगेजेस क्या करता है, कैटेलाइज करता है एसोसिएशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। अपन इसको क्या हम ग्लू भी बोल सकते हैं, ठीक है, चिपकाने का काम करता है, बोला ना, एसोसिएशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल्स डीएनए लाइगेज catalysis the joining of 2 fragments or 2 molecule of DNA by forming an phosphodiester bond. With the help of phosphodiester bond, the DNA ligases catalyze the joining of 2 fragments of DNA. Clear? तो लाइगेज क्या करता है, तोड़ने का काम करता है, लाइगेजेस क्या करता है, चिपकाने का काम करता है। इसको इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। क्लियर, समझ में आया बेटा सबको? यस मैम।